अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वारिस पंजाब डे के सरबरा अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने 36 दिन की फरारी के बाद मोगा जिले में रोडे गांव के गुरुद्वारे से इतवार की सुबह 6:45 पर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पंजाब पुलिस उन्हें भटिंडा के एयरफोर्स स्टेशन ले गई। वहां से उन्हें आसाम ले जाया गया। दोपहर 3:45 पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल अथॉरिटी के हवाले कर दिया। उधर अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद मोगा जिले में तनाव है, वहां पुलिस फोर्स तैनात है। रोडे गांव में SSP ने फ्लैग मार्च किया। गांव में बने संत खालसा गुरुद्वारे के ग्रंथी ने बताया कि अमृतपाल हफ्ते की रात को गांव पहुंचा था। इतवार की सुबह गिरफ्तारी से पहले उसने 5 ककार पहने और प्रवचन के जरिए लोगों को खिताब किया। Relentless pressure by Punjab Police from last 35 days, and all the wings of Punjab Police, they have worked in coordination for this special operation. I would just like to explain that NSA warrants were issued against Amritpal Singh, and NSA warrants have been executed today morning. Further, law will take its own course in this case. People in Punjab, they have maintained peace and harmony, and Punjab Police and especially Punjab government is thankful to the people of Punjab for maintaining communal peace, communal harmony during this period. Punjab Police is committed to maintain law and order in the state of Punjab. Any mischievous element spreading any type of rumor, they are warned to be careful and strict action would be taken against them. Any such rumor, any such mischief will not be tolerated by Punjab Police. Amritpal Singh has been arrested by Punjab Police at around 6:45 am today morning in village Rodhe. He was absconding from last about more than 1 month. Special operation was launched. A joint operation was conducted by Amritsar Police and intelligence wing of Punjab Police. He was located in village Rodhe based on operational inputs by Punjab Police, and he was surrounded from all sides. The village was surrounded by Punjab Police. Since he was inside a Gurdwara Sahab, so to maintain sanctity of Gurdwara Sahab is supreme for everyone. So to maintain sanctity, the police did not enter the Gurdwara Sahab, and since he knew that he had no way to escape now, he was surrounded by Punjab Police from all sides. The village was surrounded by Punjab Police. So he was arrested at around 6:45. He has been taken to Dibrugarh under NSA, and further the law will take its own course. We are thankful to people of Punjab for maintaining peace and harmony. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਿਹੜਾ 2023 ਹੈ, ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨੇ ਉਹ ਪਸੀਜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ। खालिस्तान में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने इतवार की दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने पुलिस के ऑपरेशन के बारे में तफसील से बताया। साथ ही पुलिस की पीठ थपथपाई। मान ने कहा कि 18 मार्च को भी अमृतपाल की गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन तब गोलियां चलानी पड़ती, इसलिए पंजाब पुलिस ने काफ़ी एहतियात से काम किया। दूसरी जानिब मुखालिफ पार्टियों ने अमृतपाल मामले को गहरी साजिश करार दिया है। CM मान ने कहा कि वो पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों को यकीन दिलाते हैं कि रियासत में अमन और शांति बनी रहेगी। मैं पूरी रात नहीं सोया। कल रात मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई थी
तो मैं हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद मैं पूछता रहता था कि क्या हुआ। मैं नहीं चाहता था कोई भी खून खराबा हो जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ताक पे लग जाए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर 3.5 करोड़ पंजाबियों की सुख चैन की नींद के लिए हमें अपनी नींद जो है वो कुछ देर के लिए या कुछ रातों के लिए गंवानी भी पड़े तो ये महंगी नहीं है। क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अपने 3.5 करोड़ जो लोग हैं मेरे पंजाब के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग बरादरियों के, अलग अलग समाज के, उनको इकट्ठा भी रखूं और उनके बच्चों को एक बेहतर भविष्य दूं। उनके हाथ में, पंजाब के नौजवान लड़के लड़कियों के हाथ में मैं उच्च शिक्षा की डिग्रियां, उनके हाथों में लैपटॉप, आईपैड, उनके हाथों में मैं इंटरनेशनल खेलों के मुकाबलों के गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल देखना चाहता हूँ, ना कि कोई गैर सामाजिक चीज़ें। कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछले दिनों पंजाब के युवाओं को भड़काने की कोशिश की कि शायद वो दोबारा से बंदूकें उठा लेंगे। लेकिन पंजाब ने, लोगों ने जो साथ दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अमन शांति को भंग नहीं होने दिया। क्योंकि पंजाब ने बहुत से काले दिन पहले देखे हैं और पंजाब अब तरक्की करेगा, पंजाब अब देश को लीड करेगा। और जिस दिन पंजाब नंबर 1 सूबा बन गया देश का, तो हमारे देश को दुनिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह बृजभूषण सिंह के खिलाफ मुजाहरे के लिए पहलवान फिर से जंतर मंतर पहुंच गए हैं। 7 खवातीन पहलवानों ने सिंह के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायत दी है। पहलवानों ने कहा कि 3 महीने हो गए और हमें इंसाफ नहीं मिला, इसीलिए हम फिर से मुजाहरा कर रहे हैं। हम इंसाफ की मांग करते हैं। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पहले हमसे कहा जाता था कि एफआईआर कराओ, अब हम एफआईआर कराने जा रहे हैं तो पुलिस सुन नहीं रही है। तो चले जाएंगे जब तक अरेस्ट नहीं होता, जब तक हम देखिए सर, ये देश के खिलाड़ी बोल रहे हैं कि हमारे साथ में हरासमेंट हुआ है, एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और जो अक्यूज है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्योंकि हमारी लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार सब कुछ दाव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लग रहा है? 3 महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को। और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं। क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस पर है, ऐसा लग रहा है आपको? ये देखिए, आपको भी पता है कि जिसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं वो कितने स्ट्रोंग है। हमें नहीं पता उनको बताने के लिए कौन लोग उनका साथ दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम देश की जनता से न्याय मांगने आए हैं, देश की उच्च न्यायालय से हम न्याय मांगने आए कि हमें न्याय दिया जाए। जंतर मंतर पे क्या कंटिन्यूटी में रहेगा धरना आपका? हम इधर ही सोएंगे जी, इधर ही खाएंगे, जितना हो सकता है इधर ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आज आप लोग अनुराग ठाकुर जिससे आपने समय मांगा था मिलने का, वो देखिए, नहीं मिला क्या? इसलिए आज आप लोग 3 महीने से हम लोग कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ना तो कमेटी के लोग हमें कोई जवाब दे रहे हैं, ना खेल मंत्रालय से हमें कोई भी जवाब मिला है। हमारे फोन भी नहीं उठाए जाते हैं। आज भी आपने समय मांगा था मिलने का, आने से पहले? मैडम 3 महीने हो गए जी, हम कितना टाइम हम फोन करके समय मांगे, देखना चाहिए कि तो चले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 20 अप्रैल को आर्मी के ट्रक पर दहशतगर्द हमला हुआ था। उस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। मामले की जांच एनएसजी और एनआईए की टीम कर रही है। इस वाक़े को लेकर इतवार को एक जानकारी सामने आई है। एक न्यूज़ एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट आई है कि दहशतगर्दों ने ट्रक से जा रहे जवानों पर हमले के लिए स्टील कोर बुलेट्स का इस्तेमाल किया था। ये बुलेट्स बकरबंद ढाल को भेदने में अहलियत रखती हैं। माना जा रहा है कि भाटा धुरियान के घने जंगल वाले इलाके में एक स्नाइपर ने ट्रक को आगे से निशाना बनाया। इसके बाद दीगर दहशतगर्दों ने ट्रक पर गोलियां बरसाई और ग्रेनेड फेंके। फौजियों को जवाबी कार्रवाई करने का वक्त नहीं मिला। फौज के ट्रक में इफ्तार के लिए खाने का सामान था, इसे लेकर वो पास के गांव जा रहे थे। ये जवान दहशतगर्द सरगर्मियों की मुहिम के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल्स की एक यूनिट में से थे। बता दें कि हमले के बाद दहशतगर्द फौजियों के हथियार लेकर फरार हो गए।
कांग्रेस कायद राहुल गांधी 2 दिन के कर्नाटका दौरे पर इतवार के रोज हुबली पहुंचे। वो वहां से बागलकोट गए, जहां 12वीं सदी के पोएट और समाज सुधारक बसवेश्वर की जयंती पर कुदाल संगम में शामिल हुए। इस तकरीब के बाद राहुल गांधी विजयपुरा में एक रोड शो में गए। बसवा जयंती तकरीब से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इंसान यूं ही रोशनी नहीं देता, उसके लिए पहले खुद से सवाल करना पड़ता है। दूसरों से सवाल करना आसान है, खुद से सवाल करना मुश्किल है। राहुल गांधी ने कहा कि जब समाज में अंधेरा था तब बसवा ना अंधेरे में रोशनी की तरह निकले थे। बसवा जी ने लोकतंत्र का रास्ता हिंदुस्तान और विश्व को दिया। ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ, ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ತಂದು ಸಹ ಬಸವಣ್ಣವರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು। और ये सच्चाई है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲಗಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। और अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र आया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई, अधिकार आए, तो उसमें जो नींव रखी गई थी बसवा जी जैसे लोगों ने रखी थी। ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಸಂಸದೀಯ ಸಂಸತ್ತಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವರ ಮತ್ತು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಇದೆ ಕಾರಣ। जहां भी आपको अंधेरा दिखेगा तो उसी अंधेरे में से कहीं ना कहीं रोशनी निकलती है। ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕತ್ತಲು ಕಾಣ್ತದೆ, ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಸಿಗ್ತದೆ, ತೋರಿಸಪಡುತ್ತದೆ। और जैसे समाज में अंधेरा होता है, उस समय समाज में अंधेरा था, तो उस समय बसवा जी रोशनी जैसे अंधेरे में से निकले थे। ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರು। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान गौरव वल्लभ ने इल्जाम लगाया है कि कर्नाटका के वजीर मुरुगेश निरानी के पास से कैश, शराब और ड्रग्स जैसी अशिया जब्त की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे शख्स को इलेक्शन लड़ने की इजाजत कैसे दी गई। Not only this, 37 lakh of freebies were also seized. Not only this, I am surprised that how low BJP and their ministers can fall. 45 lakh rupees of drugs. 45 lakh rupees of drugs was also seized from the minister's premise, from his factory. Till now, in Karnataka, 82 crore rupees worth in cash, 19.6 crore rupees of freebies, 56 crore rupees of liquor, 16 crore rupees of drugs, 73 crore rupees of gold and 4.2 crore rupees of silver was already seized. Still 16 days to go in election. Total money seized by Election Commission till April 21st is 253 crore. And this is whose money? This is 6.5 crore Kannadiga's money, which was now used in election.
I would like to show you one news cutting from 2021. In this news cutting, one corrupt minister who is facing corruption charges is trying to promote another for chief minister. You can see this. In this news cutting, former minister K. Ishwarappa, who is also facing corruption charges, in public meeting in year 2021, he was Kannadigas, which was looted by this 40% commission Sarkara. And I can say I never imagined that not only silver lamps of 963 silver lamps, but also 1.82 crore cash was also seized. कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज ऐलान किया है कि कर्नाटका के असेंबली इंतखाबात में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर इंतखाबात लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सीपीआई ने रियासत की 215 असेंबली हलकों में कांग्रेस के उम्मीदवारों की तायद करने का ऐलान किया ताकि बीजेपी की करप्ट हुकूमत को शिकस्त दी जा सके। We find that the Indian National Congress and CPI, despite our ideological differences on many fronts, our goal is common, and that goal is to struggle against inflation, which is BJP Modi-made inflation. Struggle against the 40% commission Sarkara of Bombay government, and fight for transparency and accountability. Ensure that a system is put in place where the youth of Karnataka, where the Kannadiga young men and women don't have to buy a police sub-inspector post by paying a bribe of 80 lakh rupees. Where education in university is not sold by the BJP like assistant professors posts are sold. Where posts of assistant engineer and junior engineers are not sold. Where commitment to the people should be the sole goal of the government of the day, and not brazen loot that is being done by the BJP today. Our common goal is also to ensure justice for SC, ST, OBC and the poor and the labor. Our common goal is also to ensure constitution of the next government which is not only egalitarian in nature but which is founded upon the tenets of equality, equanimity and social justice. Our goal is common, that the middle class in this country is not plagued. If you see this cylinder behind me, that they have to pay 1100 rupees for their cylinder. I was talking to my senior colleague, an MLC, Shri Kandaji Mohan, with Mr. Salim Ahmed, with Mr. Gaurav Vallabh. There is a common struggle that both CPI and the Congress have. When we seek to form the next Congress government in the state, we believe a commonality of ideas and ideology, despite some differences of opinion, is paramount and imperative. All forces which believe in equality, equanimity, social justice, welfare of the poor and the middle class, and ensuring that the government is run for people and not for brazen loot of those in power. Such forces must come together. And that's why
उद्धव ठाकरे की शिवसेना के क़ायद संजय रावत ने दावा किया कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार अगले 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। उन्होंने इतवार को कहा कि गवर्नमेंट का डेथ वारंट जारी हो चुका है, अब यह तय होना है कि इस पर साइन कौन करेगा। राज्यसभा एमपी संजय रावत ने कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि उनके साथ इंसाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के धड़ों की पिटीशंस पर फैसला महफूज रख लिया था। ये पिटीशंस पिछले साल रियासत में हुए सियासी उठापटक से जुड़ी थी। एक पिटीशन में शिंदे के साथ गए 16 शिवसेना एमएलए को इनएलिजिबल यानी नाअहल करार देने की मांग की गई थी। रावत को उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के हक में फैसला सुनाएगा। इससे पहले रावत ने फरवरी में शिंदे हुकूमत के गिरने का दावा किया था। पंकजा या मुंडे साहेबांचा वारं सांगतात त्याने भूकंपाला घाबरू नये. चला एक शेवटचा प्रश्न आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये 16 आमदारांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. 24 ते 28 मध्ये निर्णय येण्याची शक्यता आम्ही वाट पाहतो आणि आम्हाला न्यायाची अपेक्षा आहे. जयंत पाटील यांनी म्हटलं की पुन्हा महाविकास आघाडी सरकार आहे आणि जे आमदार गेले ते सुद्धा येऊ शकतात. नाही जे निघून गेले त्यांना परत पक्षात नाही शिवसेनेत प्रवेश. जे गेले ते गेले. भगवान को प्यारे हो गए. चला असं म्हटलंय की अजित पवार हे महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री होऊ शकतात आणि त्यांनी भाकीत पण केलंय की बघा एकनाथराव असं आहे की प्रत्येक जण आपापली गणितं मांडतायत. आम्ही निकालाची वाट पाहतो. पण सध्या जे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे जे 40 लोकांचं राज्य आहे ते पुढल्या 15 ते 20 दिवसामध्ये गडगडल्याशिवाय राहणार नाही. मी मागे एकदा सांगितलं होतं की फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत सरकार पडेल. पण न्यायालयाचा निकाल उशिरा लागतो आहे. पण हे सरकार टिकत नाही. या सरकारचा मृत्यूलेख लिहिला गेलेला आहे. डेथ वॉरंट निघालेले आहे सरकारचे. आता फक्त सही कधी आणि कोणी करायची हे ठरलंय. या सरकारचं डेथ वॉरंट निघालेलं आहे. पंकजा या मुंडे साहेबांचा वार. राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने रियासत की साबिका वसुंधरा हुकूमत के दौरान बदनुमानी का मामला उठाकर कोई गलत काम नहीं किया। पायलट ने आज जयपुर में झारखंड महादेव की पूजा करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने मुल्क और रियासत की तरक्की और खुशहाली की दुआ की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लोकसभा में मामला उठाया। बीजेपी के दौर में जो बदनुमानी हो रही है, हम सब बीजेपी की बदनुमानी का मामला उठाते हैं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। 5 साल विपक्ष में रहे तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम कार्रवाई कर पटवारियों को पकड़ेंगे, अधिकारियों को पकड़ेंगे इसलिए हमें वोट दीजिए। हमने कहा था कि हम वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बात को सुनकर जनता ने हमको वोट दिया था, तो वो करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ अब बहुत कम समय रहा है चुनाव से पहले, इसलिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि करप्शन के खिलाफ जब पूरी कांग्रेस पार्टी लामबंद है और मैं खुद जब व्यक्तिगत रूप से प्रचार करता हूँ पूरे देश में, जहां जहां मुझे पार्टी बोलती है प्रचार करने के थे, 5 साल विपक्ष में रहे तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम कार्रवाई कर पटवारी को पकड़ेंगे, अधिकारियों को पकड़ेंगे इसलिए हमें वोट दीजिए। हमने कहा था कि हम वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बात को सुनकर जनता ने हमको वोट दिया था, तो वो करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ अब बहुत कम समय रहा है चुनाव से पहले, इसलिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा मानना है कि करप्शन के खिलाफ जब पूरी कांग्रेस पार्टी लामबंद है और मैं खुद जब व्यक्तिगत रूप से प्रचार करता हूँ पूरे देश में, जहां जहां मुझे पार्टी बोलती है प्रचार करने। वेस्ट बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर जिले में एक दलित नाबालिग के साथ मुबैना रेप और कत्ल के बाद जमकर तशद्दुद हुआ। गांव वालों ने उस लड़की की लाश लेने आए पुलिस एहलकारों पर पत्थरबाजी की। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को बुलाना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। लड़की की लाश घसीटे जाने का ये वाकया जुमे के रोज का है और इसका वीडियो हफ्ते के रोज से वायरल हो रहा है। बीजेपी के आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया ने इस वाकये का वीडियो शेयर किया था। इस पूरे मामले को लेकर काफी सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है। अफ्रीका के मुल्क केनिया में एक ईसाई पादरी के कहने पर 29 लोगों ने भूखा रहकर
इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इन लोगों की लाशों को किल्फी सूबे में शाकाहोला के जंगल से बरामद किया। दरअसल गुड न्यूज इंटरनेशनल चर्च के पादरी ने इन लोगों से कहा था कि अगर ये भूखे रहकर खुद को दफन कर लेते हैं तो इनकी मुलाकात जीसस से होगी और इन्हें जन्नत मिलेगी। अब इन लोगों की लाशों को निकालने का काम 3 दिनों से चल रहा है। केन्या की पुलिस ने एक खबर से तो एक ही खानदान के 5 लोगों को निकाला जो एक साथ जीसस से मिलना चाहते थे। पुलिस को अभी तक 65 खबरें मिली हैं। इनसे लोगों को निकालने का काम चल रहा है। पुलिस को लग रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ेगा। पुलिस इस उम्मीद में खबरें खोद रही है कि हो सकता है कि कोई शख्स अब भी जिंदा हो। हालांकि उनके हाथ सिर्फ मरे हुए लोगों के जिस्म ही लगे हैं, इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। इस वाक़े का खुलासा होने के बाद पुलिस ने पॉल मैकेंजी नाम के पादरी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि वो लगातार कह रहा है कि उसने लोगों को खुदकुशी करने के लिए रागिब नहीं किया था। सूडान में एक हफ्ते से फौज के 2 ग्रुपों में लड़ाई के नतीजे में दारुल हुकूमत खुर्तुम और दीगर शहरों में बड़े पैमाने पर अनारकी फैल गई है और जगह जगह लूटमार के वाकयात सामने आए हैं। दूसरी तरफ पुलिस के अमन और अमान बरकरार रखने में नाकामी और पुलिस एहलकारों के मदद से गायब होने पर अवाम में शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ख्याल रहे कि सूडान की मुसल्लह अफवाज के दो दलों सरियुल हरकत फोर्स और जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान की ज़ेर कमान फौज के दरमियान एक हफ्ते से लड़ाई जारी है। शहरी इस्तिफसार करते हैं कि इंसानी हुकूक के पामालियों और लूटमार के वाकयात में पुलिस कहाँ गायब हो गई है। अफ्रीकी मुल्क सूडान में लड़ाई के बीच इंटरनेट बंद कर दिया गया है। 72 घंटों की सीज फायर के बावजूद दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इन सब के बीच वहां फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सऊदी अरब ने हफ्ते की देर रात सूडान में फंसे 158 लोगों को महफूज निकाला। इनमें कई हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। वहीं इतवार की सुबह अमेरिका ने खार्तूम में वाक़ अपनी एम्बेसी के स्टाफ को महफूज निकाल लिया। एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि एम्बेसी के 70 डिप्लोमेट्स और उनके खानदानों को महफूज निकालने के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट में एयरलिफ्ट किया गया। सूडान में तख्ता पलट के लिए फौज और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच 9 दिन से लड़ाई जारी है। हफ्ते के रोज एक खुदकश हमले ने वसत माली को दहलाकर रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुदकशी बम धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में कई की हालत संगीन भी बताई जा रही है, यानी महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बम धमाके की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने वाक़े के ताल्लुक से बताया कि हम मामले की जांच कर रहे हैं। महलूकीन की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। हादसे में जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। स्पेन की दारुल हुकूमत मैड्रिड के एक रेस्टोरेंट में हफ्ते की शाम फ्लैम्बी पिज़्ज़ा सर्व करने के दौरान आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग जख्मी हो गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ रेस्टोरेंट में 30 लोग मौजूद थे। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। चश्मदीद दूत ने लोकल मीडिया से कहा कि वेटर पिज़्ज़ा लेकर आया, उसने उस पर अल्कोहल डाला और फिर ब्लो टॉर्च से इसमें आग लगा दी। इसी तरह से फ्लेम्बी पिज़्ज़ा सर्व किया जाता है, लेकिन ये आग पास में रखे प्लास्टिक के फूलों तक पहुंच गई और फैल गई। शुमाली फ्रांस में एक बैनुल अक़वामी पतंगबाजी फेस्टिवल के दौरान एक कार हुजूम में चढ़ जाने से कम 11 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत नाजुक है। मिंट्स अखबार ने इत्तला दी कि 20 ये वाक़या हफ्ते की शाम शुमाली फ्रांस के पास डी कैलास अपार्टमेंट के ब्रिक कैम्यून में पेश आया। अखबार ने प्रोसिक्यूटर के दफ्तर का हवाला देते हुए कहा कि एक 76 साल ड्राइवर मुबैना तौर पर ब्रेक पैडल फेल होने के बाद गाड़ी पर से कंट्रोल खो बैठा। इसके बाद ये कार एक हुजूम में घुस गई, जिससे यह हादसा पेश आया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को केरल के कोची में मुल्क की पहली वाटर मेट्रो सर्विस का इफ्तिताह करने वाले हैं। इसके अलावा मंगल के रोज पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क का इनॉग्रेशन भी करेंगे। पोर्ट सिटी कोची में वाटर मेट्रो सर्विसेज को 1136 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोची सिटी से आसपास के 10 आइलैंड्स को जोड़ा जाएगा। इस कभी ना रुकने वाली कनेक्टिविटी का ये काम बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स से किया जाएगा। केरल के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने हफ्ते को कोची वाटर मेट्रो को रियासत का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि सदर्न स्टेट्स के ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म सेक्टर्स के लिए ये वक्त
ये अच्छा वक्त आने वाला है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।